We have some people here. Okay, we have added this person in our community. Do we have anyone watching us? Guys, use the chat and let us know. Okay, I'll send the link to some people. Hopefully, some people will join now. Something will happen. Let's see if somebody joins now. Well, this could be our fun platform where we try to help people. Well, I'm expecting someone now. So, what are the things that we are going to help people with today? Guys, you can ask me any questions. Let me see if I can find some situation for you. We're going to discuss some situation. Tough five situations in communication, in personal life. I think that this will be good enough. Hello, people. If you're here, I can hear you. I cannot hear you. Can you hear me, guys? When someone close hurts you but didn't intend to, why it is tough? When someone close hurts you but didn't intend to, why is it tough? Basically, that's the question we have. Are we? Are you with me, guys? Do you understand the question? When someone close hurts you, why is it tough? Hey people, hello everyone watching. So I'll be helping you with communication coaching. Psych Nation, जो भी आपके क्वेश्चंस है guys आप मेरे से पूछिए. First of all, thank you for joining here. Thank you for being here. Good evening. Hello Mandeep. Hello जी. कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं इंग्लिश से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन. आई एम चेकिंग द चैट. तो आप बताइए मेरे को आपके क्या क्वेश्चंस हैं. हाउ कैन आई हेल्प यू? चैट मेरे सामने है, यू कैन लेट मी नो जो भी आपके क्वेश्चन हैं. आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं. वी हैव लाइक 45 मिनट्स राइट नाउ. कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, दे हैव एनी क्वेश्चंस, दे वांट टू आस्क एनीथिंग, तो मुझे बताइए. आप उनको लिंक सेंड करिए. दे विल कम हियर एंड विल बी एबल टू हेल्प देम. दैट्स व्हाट आई एम ऑन हियर. कोई क्वेश्चंस है मनदीप आपके? एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी? दिस इज जस्ट अ Q&A. आई एम डूइंग अ लाइव Q&A. कुछ भी आप पूछना चाहते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आस्क मी क्वेश्चंस गाइस. आपकी इंग्लिश कैसी चल रही है गाइस? हाउ इज योर इंग्लिश गोइंग? आर यू हैविंग फन? आर यू एबल टू स्पीक इन इंग्लिश? आर यू एबल टू स्पीक सेंटेंसेस? आर यू एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपर्ली इन इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशंस? मनदीप, हमें क्या दिक्कत आ रही है इंग्लिश में, आप बताइए मुझे. कुछ क्वेश्चंस हैं आपके? अगर क्वेश्चन नहीं है तो आई हैव अ सिचुएशन, वी कैन डिस्कस अबाउट दैट सिचुएशन. सो द सिचुएशन वी हैव इज, what if or when someone close hurts us, why does it matter? Why is it so hard? This seems like a very good question to understand कि ऐसा क्यों होता है. Well, I think it's pretty simple to understand why this they are able to hurt us, because कहीं ना कहीं हमने उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पावर दे रखी है that they can hurt us, and that's why they are able to hurt us. Don't you think so, guys? Because we have given them the power. You're learning English yourself. Great, Mandeep. Great work. You're learning English yourself. But क्या कुछ tips आप चाहेंगे मेरे से? Would you like some tips from my side कि मैं आपकी बेटर तरीके से कैसे हेल्प कर सकता हूँ? ऐसे कुछ anything, anything कि आप कैसे इंग्लिश सीख रही हैं अभी? How are you learning? आपका लर्निंग प्रोसेस क्या है? There are many many ways to learn English. आप कैसे सीख रही हैं? आप बताइए मुझे. एंड कुछ भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो लेट मी नो. So when someone close hurts, why is it so tough? जैसे मैंने बोला guys, the reason people are able to hurt us is because we have given them the power to hurt us. हमने लोगों को वो आज़ादी दे रखी है, that freedom, that power, they have that, and that's why they're able to hurt us. Why? Because they know us very well, and it's okay. Like sometimes, why does it hurt us? Like it will hurt. No, obviously we are human beings, so it will hurt. So the question why it hurts, we can talk about the chemical imbalances, we can talk about the anxiety, the stress that happens, that comes through because of all of that. But what's the point in all of that, right? तो ये क्वेश्चन पूछना कि हमें क्यों दर्द होता है, दर्द तो होगा ही because they are connected with us. So it obviously it is going to hurt us.
Right, so I think we can go to the next question. Do you guys have any questions? Any other questions? मेरे पास एक नया क्वेश्चन है, लाइक हैंडलिंग डिफेंसिवनेस ड्यूरिंग अ सीरियस कॉन्वर्सेशन. ये इतना टफ क्यों होता है? हैंडलिंग डिफेंसिवनेस ड्यूरिंग अ सीरियस कॉन्वर्सेशन. ड्यूरिंग अ सीरियस कॉन्वर्सेशन कैसे हम एक डिफेंसिवनेस हैंडल करेंगे ड्यूरिंग अ सीरियस कॉन्वर्सेशन? इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन, लेट्स से आपको एक इश्यू है जो आपको तंग कर रहा है और वो आप किसी चीज के बारे में आप बात करना चाहते हो, बट जो नेक्स्ट पर्सन है वो सुन कम रहा है आपकी और उस चीज को डिफेंड करने लग जाता है. और जब वो डिफेंड करता है तो वो चीज एक अटैकिंग बन जाती है, करता है या करती है, जो भी जेंडर आप ले लो, जिससे भी आप बात कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि आई फील इग्नोर्ड दीज डेज, कि मुझे इग्नोर्ड फील हो रहा है, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, ये वो. एंड वो ये कहते हैं, ओ तो मतलब मैं एक बुरा इंसान हूँ. तो सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. दे ट्राइंग टू डिफेंड द कॉन्वर्सेशन. दे नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप क्या बोल रहे हो, बट दे आर जस्ट विद इन देमसेल्व्स, ओ कि मुझे बुरा बोल दिया, मेरे बारे में ये बोल दिया, मेरे बारे में वो बोल दिया. एंड दिस इज व्हाई कम्युनिकेशन बिकम्स सो इंपॉर्टेंट इन दोज एस्पेक्ट्स, कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, लाइक हमने ऐसा क्या किया है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है. वी हैव जस्ट रेज्ड a simple issue कि वी आर फीलिंग लाइक दिस, राइट, वी आर जस्ट शेयरिंग आवर फीलिंग्स, बट सामने वाला हमें वो उतनी वैल्यू नहीं दे रहा, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, क्या हो रहा है. एंड दैट्स वाई, तो वहां पे हम क्या करें? अगर कोई कह रहा है, ओ सो आई एम बैड पर्सन, सो आई एम अ बैड पर्सन, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं? सी अगर कोई ऐसा बोलता है वहां पे हमें उनको, इसको बोलते हैं रीफोकस करना. एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है. आई कैन गिव यू द फ्रेमवर्क. इफ यू आर एबल टू राइट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन. इसको बोलते हैं लैवर. सिंपल सा फ्रेमवर्क है. इसमें क्या होता है कि यू लिसन टू व्हाट दे हैव सेड. आप उनको एक्नॉलेज करो कि नहीं ऐसा नहीं है, जो भी, कि आप उन्हें बताओ कि हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ. आप उनको वैलिडेट करो. और लास्ट आप रीफोकस करो. ये होता है कि नहीं मैं आपको सुन रहा हूँ. लिसन मतलब लिसन, दैट यू आर लिसनिंग टू देम. नेक्स्ट इज एक्नॉलेज. एक्नॉलेज मतलब कि आप उनको बताओ कि मैं आपको सुन रहा हूँ. वैलिडेट मतलब गिव देम अ सेफ एनवायरनमेंट, कि आप उनको कुछ ऐसा बोलो कि वो सेफ फील करें आपके साथ बात करने के लिए. बिकॉज इफ यू सेड लाइक, ओ आई एम फीलिंग इग्नोर्ड नाउ. So B person कहता है, oh so I'm a bad person. So they are going defensive basically. You raised a very simple issue, but now they are being like, oh so I'm a bad person. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको refocus करना है. Basically the objective is to refocus, कि नहीं मैंने आपको bad नहीं बोला, but I'm just saying that I'm feeling ignored. So rather than going, oh ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो मेरी बात सुनता नहीं है, ये तो वो. Rather than doing all of that, what we need to do is we just need to say this thing again, but in a slightly different way. एंड क्योंकि हमें दिख रहा है कि वो बंदा डिफेंसिव हो रहा है, वो हमारी बात अभी सुनना नहीं चाह रहा, सो वी हैव टू गिव देम अ सेफ स्पेस. सो हाउ डज हैपन? लिसन तो है कि हमने लिसन कर लिया, वी हर्ड देम. एक्नॉलेज, नो इट्स नॉट लाइक दैट. नो इट्स नॉट लाइक दैट. सो बेसिकली वी हैव टू एक्नॉलेज कि आई एम नॉट सेइंग यू आर अ बैड पर्सन. ये हो गया वैसे आपका वैलिडेशन बेसिकली. ठीक है, ये हो गया आपका वैलिडेशन, कि यहाँ पे आपको उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट देना, सो दे फील गुड वाइल टॉकिंग टू यू, कि आपको उनको बताना कि मैं आपके बारे में उल्टा नहीं बोल रहा. आई एम नॉट सेइंग यू आर अ बैड पर्सन. सो नो इट्स नॉट लाइक दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू एक्नॉलेज कि आपने उनकी बात सुन ली. नो इट्स नॉट लाइक दैट क्लियरली. सेकंड, you validate, you give them a safe environment. No, I'm not saying you are a bad person. Then you refocus. I'm just saying that I am feeling. और जब आप बोलोगे आई एम, यू हैव टू स्ट्रेस ऑन दिस. सो लेट्स बोल्ड दिस. तो जब आप बोलोगे आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, आई एम जस्ट सेइंग दैट आई एम फीलिंग ignored these days. The same thing, but you have to say it again and then the same. For example, let's do the conversation again. I'm feeling ignored right now. Oh, so I'm a bad person. No, it's not like that. No, it's not like that. I'm not saying you're a bad person. I'm just saying that I am feeling ignored these days. समझ आएगा? इस सिंपल है. तो ऐसे होता है कि आपको रिफोकस करना होता है. वो कोई भी डिफेंसिव हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इट डजंट मैटर. यू हैव टू जस्ट वैलिडेट विद देम, क्योंकि उन्हें भी बुरा लग रहा है. ठीक है, आपकी फीलिंग्स भी मैटर करती हैं, बट डजंट मीन सी यू आर द वन हु इज लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल्स. ये चीज होती है कम्युनिकेशन में कि बर्डन किस पे है.
कौन बर्डन लेगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कम्युनिकेशन की? अ, हर कोई नहीं इंप्रूव करना चाह रहा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत कम लोग हैं जो इंप्रूव करना चाह रहे हैं। तो जो लोग इंप्रूव करना चाह रहे हैं उन लोगों को फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है। सी, अगर आप ये जस्ट लाइक स्पाइडरमैन मूवी, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की पावर चाहिए, देन द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल कम विद इट एज वेल। इफ यू वांट टू बी द ग्रेट कम्युनिकेटर, then you are also taking the responsibility to be able to handle these kind of conversations, कि वो सारा burden फिर आपके ऊपर है कि you navigate through those situations in a better way. This is what you have to do, और ये करना पड़ेगा guys, इसके अलावा कोई हमारे पास situation नहीं है। Expressing your needs without sounding needy or weak. Wow, that's a lovely situation. How do we express our needs without sounding needy? Your needs without sounding needy. ठीक है guys, this is also very nice situation. How can we express our needs? सबसे पहली चीज तो हमें समझना पड़ेगा इतना टफ क्यों होता है। और ये चीज तो आपको इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशन, पर्सनल लाइफ हर जगह हेल्प करेगी, बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स एवरीवेयर। इंटरव्यू में जा रहे हैं बट डेस्परेट साउंड ना करें, प्रेजेंटेशन स्किल्स दे रहे हैं बट ऐसा साउंड ना करें कि बस हम बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, हमें किसी का अप्रूवल चाहिए, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। क्लाइंट मीटिंग जा रहे हैं, सेल्स में हो आप, कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हो, सो इट शुड नॉट लुक लाइक यू ट्राइंग टू हार्ड टू सेल समथिंग। इट शुड बी मोर लाइक कि आपकी भी नीड है कुछ बेचना और सामने वाले की नीड भी है खरीदना। तो इट हैज टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, और ये चीज आपको दिखानी आनी चाहिए। अगर हम कोई एक सिचुएशन ले कि लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू वांट समथिंग, अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। हम अगर एक इंटरव्यू का भी एग्जाम्पल ले लें, इसमें किसी को अगर अपना इंटरव्यू क्लियर करना है तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि यार हम इंटरव्यू में जाएंगे, अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा। इससे कुछ नहीं होने वाला गाइस। ये जो डर है, ये जो फीलिंग है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एंड दिस इज नॉट हेल्पिंग यू। इंटरव्यू में जा रहे हो तो मस्त होके जाओ, ठीक है? ये समझ आ गया, इस बारे में हम बात करते हैं। इंटरव्यू में जा रहे हो तो मस्त होके जाओ, आपके दिमाग में टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये हो गया वो हो गया मेरा नहीं हो, नो। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेरी फर्स्ट perspective you should have while going for an interview, it should be just as simple as you're going to meet someone. You're going to meet the manager, the HR, probably the director in the second round or whatever. जो भी होंगे, you'll meet the team leaders, you'll meet the team. अगर आप consultancy जा रहे हो तो you'll get to meet those people. So that is the perspective you need to talk from, कि यार you're going to meet someone, right? And so ये पहले तो वो एक हैप्पीनेस होनी चाहिए that yes, wow, at least I have an interview. बहुत लोगों को इंटरव्यू से नहीं अलाइंड हो रहे हैं, so at least you should have that good perspective कि एटलीस्ट मेरा इंटरव्यू है, कि एटलीस्ट मुझे ये मौका मिल रहा है। चाहे मेरे पिछले 3 इंटरव्यू रिजेक्ट हुए बट मुझे चौथा मौका मिला है। बट हमें इस अप्रोच से नहीं जाना कि यार ये होना ही होना चाहिए, नहीं होगा तो मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा। उस थिंकिंग से आता है पैनिक, उस थिंकिंग से आती है डेस्परेशन, उस थिंकिंग से इंटरव्यू आपकी आंखों में देख के आपकी बातों से जज कर सकता है कि इसे अभी जॉब की ज्यादा नीड है। उसे ये पता लगता है इस चीज से कि इसकी नीड ज्यादा है। और जब भी इंटरव्यूअर को ये समझाएगा कि इसकी नीड ज्यादा है, पर वो उसका भी एक अच्छा तरीका होता है और उसका भी एक गलत तरीका होता है। नीड दिखाने के 2 तरीके होते हैं, नीड दिखाने के कई तरीके होते हैं, राइट गाइस? देखो जूम कह रहा है कि कीप मीटिंग एक्टिव, क्योंकि आप अनम्यूट कर लीजिए, तो मैंने अनम्यूट कर लिया, राइट? तो हम अनम्यूट कर लेते हैं जरा इसे। तो नीड दिखाने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है डेस्परेट, ओ आई नीड दिस, आई वुड नीड दैट, could you hire me please, I'm the best in the company। एक होता है ये हेजिटेट करते हुए नीड दिखाना, वो मेरे घर पे पैसे नहीं है, दिस इज व्हाई आई नीड द मनी, मेरे घर पे सब खराब हो रहा है, दिस इज नॉट व्हाई somebody will hire you। ये भी आप नीड दिखा रहे हैं बट दिस इज नॉट व्हाई somebody will hire you। You should show need in the right way। if you have to show the need, you have to show the need in the right way। और वो कैसे होता है? वो ऐसे होगा when you will sound when you will let them know that I need this, but you need me just as well। Yes, absolutely, I need the job. Absolutely, I need the salary. I need all of this. But more than me, you need me more। You have a vacancy। हमें ये याद रखना है कि उनको भी वैकेंसी है उस जॉब की, उनको भी इस प्रोफाइल की उतनी ही रिक्वायरमेंट है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उस जॉब की। तो जब आप
अपनी रिक्वायरमेंट, जब आप अपनी नीड दिखा रहे हो, आपको उनकी भी नीड दिखानी पड़ेगी कि आपको भी इतनी ही नीड है। ये आपको उन्हें रियलाइज कराना पड़ेगा कि आपकी नीड है, तभी हम यहाँ बैठे हैं, तभी ये इंटरव्यू हो रहा है, बिकॉज आपकी नीड पहले है। मेरी नीड तो चल ही रही थी, बट आपकी नीड आई इस रोल के लिए, एंड आई एम हियर टू वर्क विद यू एंड आई विल डू ऑल ऑफ दिस। ठीक है गाइस, सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वो हमारे पहले पर्सपेक्टिव होना चाहिए। अगर पर्सपेक्टिव गलत होगा तो सारे शब्द गलत होंगे। कम्युनिकेशन में सबसे पहली चीज अंडरस्टैंडिंग आती है, सेकंड चीज आती है पर्सपेक्टिव, कि आप किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। पहली चीज होती है कि हमें समझ आना चाहिए कि पूछा क्या गया है, सेकंड चीज आती है कि हमें यह समझ आना चाहिए कि क्या बोलने का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा, और वो होता है जो पर्सपेक्टिव होता है, वो होता है आपके गोल से रिलेटेड। आपका क्या गोल होगा, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा बना के दिखा देता हूं। First thing that happens in any kind of conversation that you need to have a solid understanding. Communication starts with understanding. Second thing, you need to write your goal, कि क्या गोल है मेरा। सैलरी चाहिए, सेल्स का गोल है मेरा, सेल करना है आपको कुछ, मीटिंग्स में इंप्रेस करना है, प्रमोशन चाहिए आपको, आपको लीड्स चाहिए। व्हाट इज द गोल? गोल नहीं होगा so you cannot have any sort of communication going anywhere. Where are we getting to? Why did we speak? क्यों बोल रहे हैं हम, क्यों समझ रहे हैं हम, हर चीज का गोल होता है। विदाउट अ गोल you will never reach anywhere. हमें एक गोल चाहिए हर चीज के लिए। कम्युनिकेशन में भी एक गोल होता है। गोल के बेसिस पे गोल के बेसिस पे आपका एक पर्सपेक्टिव बनता है that leads you to the, not even leads you, that at least that keeps you on the right path. तो सबसे पहली चीज होती है, हेलो एवरीवन, बाय द वे हेलो, मैं देख रहा हूँ सबको गाइस, मैसेज में पढ़ा नहीं रहा हूँ, चैटिंग विद यू गाइस, मैं समझा रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे काम करती है गाइस। हाय लिखो अगर आप देख रहे हो तो चैट में पुट हाय। तो सबसे पहली चीज होती है गाइस कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या बोला गया है, एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है, क्योंकि कई बार हम समझ ही नहीं पाते, वो बोलते कुछ है, हम आंसर कुछ करते हैं। सबसे पहली चीज होती है अंडरस्टैंडिंग। सेकंड चीज होती है यू हैव टू राइट योर गोल, कि हमारा गोल क्या है, हमें सैलरी चाहिए इंटरव्यू में, हमारा गोल क्या है, हमें सेल्स करनी है, हमें कुछ बेचना है, हमें किसी को इंप्रेस करना है, कोई प्रमोशन चाहिए, क्या हमें लीड्स लानी है, क्या गोल है हमारा एग्जैक्टली। बी टू बी में आप, तो मीटिंग अगेन सेल्स है, बी टू बी भी। तो गोल, पहले गोल होगा, गोल से बनता है पर्सपेक्टिव, कि हम हमें किस पर्सपेक्टिव से बात करनी है। पर्सपेक्टिव को एक और चीज कहते हैं कम्युनिकेशन में, अगर आपने सुना हो, इसको कहते हैं फ्रेम, कि आपका नजरिया क्या है, क्योंकि नजरिया गलत होगा तो फिर आपके शब्द भी गलत होंगे। vocabulary, grammar, all of these things would not matter. अगर आपने फिफ्थ क्लास तक की भी इंग्लिश पढ़ी है तो यू हैव ऑल द vocabulary। बहुत लोगों को लगता है कि मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, मेरी ग्रामर बहुत खराब है, और उन्हें यही लगता रहता है, और वो उसी स्टेट में रहते हैं। जबकि इंग्लिश का, आपके कम्युनिकेशन का, आपकी ग्रामर और vocabulary से बहुत ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है। तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। इसलिए हमें इंग्लिश सुननी बहुत ज्यादा पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग आती है लिसनिंग से। ये चीज समझ आ गई, इसके नोट्स बना लो, बनाने तो इट्स फाइन। तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग आए वो आएगी आपकी लिसनिंग से, कि आपका कितना एक्सपोजर है लैंग्वेज में, कितना आप सोशल इंटरेक्शंस करते हैं, कितना आप फीडबैक लेने के लिए एक्टिव हैं, कितना बुरा आप नहीं मानते हैं। अंडरस्टैंडिंग में और बहुत जरूरी चीज है कि आपकी कोई ईगो नहीं होनी चाहिए। आपकी ईगो होगी तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे किसी को, क्योंकि ईगो का मतलब मैं, अहम। ईगो मतलब मैं, कम्युनिकेशन मतलब सामने वाला। कम्युनिकेशन हम कभी भी सिर्फ अपने लिए नहीं करते, हम हमेशा दो लोगों के लिए करते हैं, हम और वो। तो कम्युनिकेशन ऑलवेज हैपेंस फॉर द वी, हम भी इन हैं उसमें और वो भी हैं उसमें। सो कम्युनिकेशन ऑलवेज हैपेंस फॉर टू पीपल, वी एंड देम। I'll say it again. Communication always happens for whom? We and them. So both need to have some sort of win in the situation. अगर मैं जीत रहा हूं वो हार रहे हैं, communication will fail. अगर मैं हार रहा हूं वो जीत रहे हैं, communication will fail. अगर हम दोनों हार रहे हैं, communication will fail. So we both have to win. It has to be a win-win situation. अगर आप विन विन सिचुएशन क्रिएट कर पा रहे हैं, सामने वाला इंटरव्यूअर है, उसे आप चाहिए, आपको जॉब चाहिए, दे बोथ शुड गेट द राइट पर्सन। आपको सही कंपनी मिलनी चाहिए, सही कल्चर मिलना चाहिए, सही सैलरी मिलनी चाहिए, उनको सही इंसान मिलना चाहिए, सही स्किल्स मिलनी चाहिए, आपका प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, आपसे ज्यादा चिक चिक नहीं मिलनी चाहिए। पर वो तभी होगा जब आपको भी सारी बराबर चीजें मिल रही होंगी। आपको कम मिलेगा तो फिर आप भी उन्हें कम दोगे।
दिस इज हाउ इट गोज, दिस इज हाउ ह्यूमंस आर, यही होते हैं। हेलो गाइस, बाय द वे एवरीवन, आई एम लुकिंग एट ऑल ऑफ यू। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड, थ्री फोर क्वेश्चन हमने कर लिए। देन गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग ऑनेस्ट फीडबैक विदाउट डैमेजिंग द रिलेशनशिप। ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है गाइस, कि हम किसी को एक ऑनेस्ट फीडबैक कैसे दें बिना रिलेशनशिप को डैमेज करें। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज बैक एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, दिस यूज्ड टू हैपन अ लॉट, कि मुझे बहुत सारे फीडबैक देने होते थे एवरी टाइम, लाइक एक महीना 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद देयर कम्स अ पॉइंट वेर यू हैव टू से कि यार अब या तो काम कर लो या तो काम छोड़ दो। देयर कम्स अ टाइम, एंड आपको भी ये फील हुआ होगा कहीं ना कहीं कि यार अगर आप भी जॉब कर रहे हैं तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि क्यों कर रहे हैं वो काम, जब उनसे नहीं हो रहा, जब उनके बस का नहीं है, तो वो क्यों कर रहे हैं काम, नहीं करना चाहिए, कुछ और काम कर लो। काम की कमी थोड़ी है, आप वो काम करिए ना जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको समझ आता है, जो आपके पोटेंशियल का है। कई बार लोगों का पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है एक फील्ड में, पर वो दूसरी फील्ड में बैठे रहते हैं 10-10 साल, तो वो नेवर, दे नेवर ग्रो, एंड बिकॉज ऑफ देम द कंपनी नेवर ग्रोज, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इवन जो पर्सन की ग्रोथ रुक रही है, उससे उनकी फैमिली की ग्रोथ रुक रही है, बट दे डोंट सी दैट। सो गाइस, इसमें एक चीज होती है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। देयर आर ओनली टू थिंग्स दैट आर हैपनिंग, बिकॉज सी, दुनिया एक रास्ते पे है, वर्ल्ड एक अपनी ग्रोथ पे है, जो ओवरऑल कलेक्टिव की बात कर लो, ग्रोथ की बात कर लो, एक यूनिवर्स अपनी एक अपने आप एक ग्रोथ पे है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 5% ग्रोथ है, अगर हम इतना सिंपल एक एग्जाम्पल ले लें, 5% तो ग्रो करेगी ही करेगी, यूनिवर्स, ग्लोब, अर्थ, पीपल, कम्युनिटी, एवरीथिंग, वी, मी, यू, ऑन एवरेज लेट्स से विल ग्रो बाय 5% ऑन एवरेज, कि हर कोई ग्रो करेगा। सो विच मीन्स अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, अगर 5% से कम पे हैं, अगर आप 4% ही ग्रो करते हैं पूरे साल में, तो आप नहीं मैच कर पा रहे हैं ना, आपका अगर 5% नहीं है, तो इसका मतलब आप डिक्लाइन हो रहे हैं 1% से, आप डिक्लाइन ही तो हो रहे हैं ना। तो फिर हम क्यों होना चाह रहे हैं डिक्लाइन, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अपने साथ। और अगर हम 5% पे हैं तो हम बस मैच कर रहे हैं, पर एटलीस्ट हम ग्रो कर रहे हैं, पर एटलीस्ट हम ग्रो कर रहे हैं। उससे ज्यादा अगर हम कर रहे हैं 6%, 7%, 10, 20, 30, उसके बाद हम जो भी कर रहे हैं, वहां पे हो रही है हमारी असली ग्रोथ। समझ आ रहा है गाइस, ये होता है ग्रोथ का फंडा। और तो अब इसमें दो ही चीजें, अगर या तो आप ग्रो कर रहे हो या तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा लाइक वर्ल्ड के साथ 5% इक्वल 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 पे चलोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो वो 4 होगा या तो 6 होगा, प्लस माइनस ही चलेगा। सो या तो वो प्लस है 6 पे हो, या वो माइनस पे है 4 पे हो। तो वो जो 1% का गैप मैं दिखा रहा हूँ, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा गैप भी हो सकता है। बहुत लोगों को देखा मैंने सेम जॉब में, सेम प्रोफाइल में, 10-10 साल से वो लोग बैठे हुए हैं, दे नॉट डूइंग एनीथिंग टू ग्रो देयर करियर, दे नॉट डूइंग एनीथिंग, दे नॉट टेकिंग एनी रिस्क। लोग रिस्क लेना बंद कर देते हैं तो दे स्टॉप ग्रोइंग। एंड वो रिस्क लेना बंद क्यों कर देते हैं, बिकॉज बहुत सारे गलत डिसीजंस की वजह से वो लोग रिस्क लेना बंद कर देते हैं। बिकॉज नाउ दे गेट मैरिड एंड दे हैव अ रेंट टू पे फॉर देयर कार, गाड़ी खरीद लेंगे ईएमआई पे, फोन्स खरीद लेंगे ईएमआई पे। देयर सैलरी डजंट जस्टिफाई दैट लेवल ऑफ ईएमआईज। अच्छा राइम्स था, इट्स अ गुड राइम। देयर सैलरी डजंट जस्टिफाई दैट लेवल ऑफ ईएमआईज। तो मत करना ये गलतियां, क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियां बेचने में लगी हुई हैं, मत खरीदना, अपने आप को बिल्ड करो। मेरे से सीखो ना सीखो, किसी से सीखो, सीखते रहो, अपने आप को बिल्ड करो। कंपाउंडिंग ग्रोथ चाहिए हमें लाइफ में। अगर आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ नहीं मिलेगी लाइफ में, तो फिर हमेशा दिक्कत आएगी लाइफ में। यू नीड सम सॉर्ट ऑफ कंपाउंडिंग ग्रोथ। कोई भी चीज सीख रहे हो, हमेशा उसके नेक्स्ट लेवल की स्किल सीखो। एक फील्ड से दूसरी फील्ड में अगर एक बार जा रहे हो, तो फिर ध्यान रखना कंपाउंडिंग में उतना ही टाइम लगेगा। बहुत लोगों को देखा मैंने, एक फील्ड से बिल्कुल दूसरी फील्ड में आ जाते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर ट्राई करो, अगर एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जा रहे हो, तो उसमें जो दूसरी फील्ड में जा रहे हो, उसमें कुछ चीजें पहली फील्ड की अगर होंगी तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, आप जल्दी कर पाओगे, जल्दी सीख पाओगे, बहुत कुछ कर पाओगे। इसमें कुछ गलत नहीं है अगर आप एक फील्ड से दूसरी फील्ड जा रहे हो ओवरऑल, वो भी सब सही है, करो जो करना है करो, बट देन डू इट क्विक। देन एटलीस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम, एवरीथिंग इज ओके। एटलीस्ट वहां पे अपना टाइम और वेस्ट मत करना। ठीक है गाइस, देखें अगर हमारे पास आपको कोई क्वेश्चन पूछने का, आस्क मी ऑल द क्वेश्चन दैट यू हैव, एंड फील फ्री टू सब्सक्राइब मी अगर आपको मजा आ रहा है। आई नो समबडी इज वाचिंग, फील फ्री टू सब्सक्राइब मी, लाइक मी, एनीथिंग दैट यू वांट। आई वुड रियली लव दैट अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, कुछ करेंगे। और क्या है गाइस, कम्युनिकेशन की कुछ चीजें, और चीजें क्या बताई जाएं। सबसे ज्यादा देखो गाइस, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, बिकॉज इंग्लिश इज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश में सबसे ज्यादा जरूरी है आपका एक्सपोजर लैंग्वेज के लिए। अगर आप पूरा दिन ग्रामर की बुक्स पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट आप सुन नहीं रहे हैं इंग्लिश। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, आपने हिंदी, आपकी मदर टंग, तमिल, तेलुगु, मराठी आपने कैसे सीखी होगी बचपन में, सुन सुन के, पापा को, मम्मी को, दोस्तों को, ग्रैंडफादर को, रिलेटिव्स को, नेबर्स को,
तो हमने सुनी है, हम बोलते बहुत कम हैं। वी हार्डली बेयरली स्पीक लाइक 10-20% पूरे दिन में, द रेस्ट 80% वी आर ऑलवेज ऑलवेज लिसनिंग। बाहर कोई फंक्शन हो रहा है, गाने चल रहे हैं हिंदी के, सो आई एम लर्निंग हिंदी, क्योंकि वो अनकॉन्शियसली जा रही है मेरे दिमाग में। सो हिंदी का इनपुट है, तो आउटपुट क्या होगा, हिंदी होगा ना। So same thing happens in English. If you have an English input, you'll have eventually an English output. That's how it happens. Like, why am I able to speak so very well? Because I keep on listening and listening and listening and listening to English, English podcasts, English news, English cartoons, English jokes, everything in English. English has to be your lifestyle if you want to really really grow your career. रीडिंग से एक प्रॉब्लम होती है, लोग बहुत सारे कहते हैं रीडिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, रीडिंग से सीखेंगे। रीडिंग इज वेरी गुड। लेट मी से दैट अगेन, रीडिंग से इंग्लिश करना इज वेरी वेरी हेल्पफुल। बट the only thing is when you already are at such a great level, जब आपको ऑलरेडी इंग्लिश बोलनी आती है, जब आप ऑलरेडी अच्छे हैं, जब आप ऑलरेडी एक लेवल पे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बट नाउ यू वांट न्यू थॉट्स। रीडिंग से आपकी क्रिएटिव क्रिएटिव थिंकिंग इंक्रीज होती है। रीडिंग से आपकी फिक्शन एबिलिटीज इंक्रीज होती है। रीडिंग से आपकी आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। रीडिंग गिव्स यू द पर्सपेक्टिव। कि रीडिंग क्या होता है, बेसिकली अलग अलग ऑथर्स की आप पर्सपेक्टिव ले रहे हो। व्हेन यू रीडिंग देयर बुक्स, यू आर टेकिंग देयर पर्सपेक्टिव, यू आर लर्निंग देयर स्टोरीज। तो आप वो चीज ज्यादा सीख रहे हो। वहां पे कम्युनिकेशन का सीखने के लिए कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। रीडिंग की करी हुई चीजें, रीडिंग से पढ़ी हुई चीजें, इट्स नॉट यू नॉट गोइंग टू रिमेंबर टू मच अबाउट कि यार क्या वर्ड्स थे, क्या नहीं थे, क्या ये क्या वो। यू आर नॉट गोइंग टू रिटेन अ लॉट। ठीक है गाइस, यू आर नॉट गोइंग टू रिटेन अ लॉट। और यही सच है गाइस, नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। रीडिंग से करो, पर एक लेवल के बाद करो। एक लेवल तक आपको पहले रीडिंग छोड़नी पड़ेगी, अभी आप लिसनिंग पे फोकस करो। एक होता है ना कि हमने बचपन से इतनी ज्यादा रीडिंग करी है, हमारा मन करता है और रीडिंग करो। रीडिंग हम कर सकते हैं क्योंकि हमें आती है, तो हमें लगता है हम उससे सीख जाएंगे। पर हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहते। अगर हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हमें अपने कंफर्ट जोन को तो छोड़ना पड़ेगा। जैसे आपका एक्स होता है, उसको छोड़ देते हो तो फिर उसको छोड़ देते हो। तो छोड़ना सीखो, वो आपका कंफर्ट जोन है। रीडिंग आपका कंफर्ट जोन है, उसको छोड़ो, उससे आप कुछ नहीं सीखोगे। रीडिंग को अपना वो एक्स बना दो जिससे आप दोबारा कभी शक्ल नहीं देखना चाहते, बात नहीं करना चाहते। बिकॉज रीडिंग से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तब तब तक इंप्रूव नहीं होगी जब तक आप ऑलरेडी कंफर्टेबल नहीं हो गए हो बात करने में इंग्लिश में। यू हैव टू लिसन 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 लिसन। बोलो भी मत चाहे। एक बहुत अच्छे ऑथर हैं, बहुत अच्छी उन्होंने स्टडी करी थी। आप कुछ मत बोले। बेबीज को देखा आपने, छोड़ सारे ऑथर स्टडीज। बेबीज को देखा आपने, वो लोग कैसे सीखते हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, लाइक 2 साल 3 साल 4 साल तक, 3 4, पापा पानी, पापा खिलौने, मम्मा पानी, छोटे छोटे वर्ड्स बोलते हैं, चंक्स बोलता हूं मैं जिसको। दे स्पीक इन चंक्स फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। और वो सालों तक सिर्फ अलग अलग सिचुएशन पे बस चंक्स इकट्ठे कर रहे होते हैं अपने दिमाग में। हम बच्चों को कभी जज नहीं करते, ओ उसकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, वो बच्चा है, हमें पता है। बट दैट्स व्हाट हैपेंस जब हम एक नई लैंग्वेज सीखते हैं। हम भी बच्चे हैं, हमें भी वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बट बिकॉज वी आर एडल्ट्स, तो सोसाइटी हमें जनरली एडल्ट्स की तरह ट्रीट करती है। ओ यू आर एन एडल्ट, यू शुड नो एवरीथिंग। आप इंग्लिश कैसे नहीं बोल पाओ, बट दैट्स नॉट द केस। आपको फ्रेंच आती है, नहीं आती ना। पढ़नी लिखनी आती है ना, इंग्लिश बोलना भी सीख लोगे। तो जब आप पढ़ना लिखना सीखे थे, तो आप बच्चे की तरह सीखे थे। जब आपको बोलना सीखना है, आपको वो भी बच्चे की तरह सीखना पड़ेगा। आपको बहुत सारी गलतियां करनी पड़ेंगी, आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। You have to be able to dance in English. You have to be able to eat in English. You have to be able to sleep in English. You have to do everything in English. For example, जब आप अमेरिका जाओगे, कोई इंसान अगर अमेरिका जाता है, वहां जाके क्यों within 3 to 4 to 5 months, within 3 to 4 months, क्यों वो इंसान इतनी जल्दी, इतना अच्छा फ्लुएंट, इतनी अच्छी प्रोनाउंसिएशन कैसे हो जाती है। क्योंकि वहां पे इंग्लिश उनकी एक लग्जरी नहीं है कि हाँ एक दिन सीख लूंगा, हाँ 10 मिनट इंग्लिश रोज करके सीख लूंगा। नहीं, वहां पे उन्हें इंग्लिश बोलना उनकी सर्वाइवल स्किल है। वो नहीं बोलेंगे तो उनको पानी नहीं देगा कोई भी दुकान पे। वो वहां पे इंग्लिश नहीं बोलेंगे, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, वो अनकंफर्टेबल जोन में नहीं जाएंगे तो उनको खाना नहीं मिलेगा। अगर वो बम गिर रहे हैं, उन्हें किसी की हेल्प चाहिए, वो मर सकते हैं वहां। इट्स लाइक सर्वाइवल, बेसिक सर्वाइवल। तो यहाँ बैठ के अगर आपको, आप ये सोच रहे हो कोई आएगा मेरे से बात करेगा, मेरे पास लोग नहीं है बात करने, वी हैव चैट जीपीटी गाइस। टॉक टू चैट जीपीटी। एक्सक्यूजेस देना बंद करो। एक्सक्यूजेस से कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। कोई हेल्प नहीं होने वाली, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। एक्सक्यूजेस, जब वही 3 इडियट्स वाली मूवी, जब 60 साल के हो जाओगे, 70 साल के हो जाओगे, एंड यू लुक बैक, यार काश इंग्लिश सीख ली होती। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, वो अपनी डॉटर के लिए आई थी। उनकी डॉटर लाइक फर्स्ट ईयर में है। तो उनकी डिमांड थी कि यार मेरी बच्ची इंग्लिश सीखे। तो मैंने कहा आप भी, आपको आती है इंग्लिश, आपको नीड नहीं होती। तो उन्होंने कहा होती है।
पर मैं चाहती हूँ कि मेरी डॉटर सीखे। मैंने कहा उनको तो बिल्कुल हम सिखाएंगे, उनका तो हम करेंगे जो करेंगे, बट व्हाट अबाउट यू? तो उन्होंने कहा यार मैं भी सीख जाऊं तो बहुत अच्छी बात होगी कि मैं भी इंग्लिश बोलना सीख जाऊं, मेरा तो सपना है हमेशा से। तो मैंने कहा आप दोनों सीखिए, फिर क्या दिक्कत है? यू ऑल, हम आपको पूरा सिस्टम दे देंगे, आप सीखिए इंग्लिश। ट्रेनर्स हैं हमारे, मैं हूँ, ये है वो है, जो भी है सारा सिस्टम है, आप भी सीखिए, सब कुछ सीखिए। क्यों रोकना है हमें इस चीज को? किस चीज का वेट कर रहे हैं हम? हर चीज हमारे हाथ में है, फोन हमारे हाथ में। जस्ट नीड अ स्ट्रक्चर, जस्ट नीड अ सिंपल स्ट्रक्चर। बस आपको आज की डेट में बस एक सिंपल सा स्ट्रक्चर चाहिए कि हम क्या फॉलो करें, ये करें वो करें। देखो गाइस, जो करने वाला है ना वो सीख जाएगा, जो करने वाला है वो सीख जाएगा। जो नहीं करने वाला, जो सिर्फ बहाने बनाने वाला है, जो सिर्फ ये सोचते रहने वाला है एक दिन कुछ हो जाएगा, कर लेंगे, नहीं हो पाएगा गाइस। पहली चीज तो अपने ख्वाब बड़े करो। पहली चीज तो हमारे ख्वाब ही नहीं है इतने बड़े, हमें ड्रीम्स ही इतने बड़े नहीं है कि हम इंग्लिश कैसे बोलना सीखेंगे, हमें जरूरत ही नहीं लगती। फील कैसे हुआ कि यार जरूरत है इस चीज की? बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? उनकी कम्युनिकेशन अच्छी है इसलिए कर रहे हैं ना। बिजनेस का तो सबसे बड़ा नीड होती है कम्युनिकेशन, क्लाइंट से, एम्प्लॉय से, मैनेजर, टीम लीड, एवरीवन, सेल्स में, हर जगह, कस्टमर सर्विस, हर जगह आपको कम्युनिकेशन चाहिए। कल को आप बिजनेस कैसे करोगे? और कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश में थोड़ी होता है, यू नीड ऑल द कम्युनिकेशन बेनिफिट्स इन हिंदी एज वेल। तो कम्युनिकेशन है, बट इंग्लिश आती होगी तो फिर कल को आप इंटरनेशनल लोगों के साथ सेम बिजनेस कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्लाइंट्स आते हैं, दे नॉट एबल टू एक्सपैंड देयर बिजनेस टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स। और मतलब उन जगहों पे जहाँ पे इंग्लिश की ज्यादा डिमांड है, वो वहां पे बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इंग्लिश चाहिए अच्छी। तो कुछ लोगों के साथ डील हो जाती है उनकी, पर कुछ लोग जो, जिनको इंग्लिश की डिमांड है, वो लोग फिर डील नहीं कर पाते हैं, वहां पे उनकी चीजें रह जाती हैं। तो मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ ऐसा हो। और अभी के लिए मैं इसको बंद करूंगा। तो जितने भी लोग आए, थैंक यू एवरीवन। किसी ने सब्सक्राइब किया तो बहुत बढ़िया, और सब्सक्राइब करिएगा, इस मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई विल कीप सब्सक्राइबिंग मोर। थैंक यू एवरीवन। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट में। मैं इसको भी एंड कर रहा हूँ सेशन को। थैंक यू एवरीवन।